A great welcome to Poonam Dua Literature Classes. Hello friends, welcome to the channel. Today we will do a very important topic for all literature students as well as for Delhi University. At present this is important for Delhi University because of the upcoming examination of this subject, but otherwise this is a very important subject, Hobbes Leviathan. For DU students, the subject's full name is British Poetry and Drama 17th and 18th Century DU SOL Regular NC Web. सब students के लिए बहुत ही important है, and this is the playlist where you can find other videos of the related subject. I will provide the link in the description as well. Do not worry about that. You can read all the important topics there. Leviathan, or the meta form and power of a commonwealth, ecclesiastical and civil. ये पूरा नाम है. Commonly referred to as Leviathan is a book written by Thomas Hobbes and published in 1651, and its name derives from the biblical Leviathan. बाइबल की एक फिगर है ये. ओल्ड टेस्टामेंट अगर किसी ने पढ़ी है, ओल्ड टेस्टामेंट में लेवाइथन नाम की फिगर अपीयर होती है एज अ मल्टी हेड सी सर्पेंट की तरह अपीयर होती है, दैट इज किल्ड बाय गॉड एंड गिवन एज फूड टू द हब्रूज को एज अ फूड दे दी जाती है. लेवाइथन इज अ सर्पेंट एंड अ सिंबल ऑफ इजराइलीज एनिमीज हु विल बी किल्ड बाय गॉड. Behemoth and Leviathan, the two enigmatic animals mentioned in the Book of Job भी शायद कभी आपने पढ़ा हो, are commonly equated with the hippopotamus and crocodile. इन दो फिगर्स को, बेहेमॉथ और लेवाइथन को, हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल से एसोसिएट किया जाता है. देखते हैं कब लिखी गई थी. रिटन ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर 1642 से 51 के बीच. इट आर्ग्यूज फॉर अ social contract and rule by an absolute sovereign. Hobbes wrote that civil war and the brute situation of the state of nature could be avoided only by strong undivided government. Everywhere he said कि people are fighting with people, wars चल रही हैं, wars को avoid कैसे किया जा सकता है अगर एक बहुत ही strong undivided government हो. The work concerns the structure of society and what kind of government should be there, and is regarded as one of the earliest and most influential example of social contract theory and political theory. Let us know a bit about Hobbes. Thomas Hobbes was an English philosopher and is considered to be one of the founders of the modern political philosophy and theory. Best known the 1651 book Leviathan, which is divided into 4 parts. Part 1 of man, then of commonwealth, of a Christian commonwealth, of the kingdom of darkness. As I told you, this work is considered the earliest example of political theory. पार्ट 1 में बात करते हैं ऑफ मैन की. पार्ट 1 स्टार्ट्स ऑब्वियसली विद मैन, ह्यूमन बीइंग. Hobbes trusts that the commonwealth is nothing but an artificial man. He argues that man exists in the external world as a reactive creature that senses objects and is driven to act by the constant signals of the world. ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं. दैट्स इट. These constant signals lead to man's constant and unquenchable desires and wants. जब सबसे पहला इंसान आया होगा इस दुनिया में तो क्या फील आई होगी? लैंग्वेज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन हंगर, थर्स्ट, ये फील्स तो आई होंगी ना जरूर. और उसी की वजह से दे स्टार्टेड वर्किंग, दे स्टार्टेड रिएक्टिंग. और शायद लोगों में आपस में फिर कंपटीशन शुरू हो गया. सपोज एक शिकार है जिसको 2 लोगों को खाना है, उस वजह से वॉर शुरू हुई. तो नेचर के सिग्नल्स की वजह से अनक्वेंचेबल डिजायर्स और वांट्स हुई, एंड नेचर पुट्स एवरीवन अगेंस्ट अनदर, वन अनदर इन स्टेट ऑफ वॉर. नेचर लोगों को एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है बिकॉज नेचर के जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं और ह्यूमन बींग्स के डिजायर्स और वांट्स क्या है, वो अनलिमिटेड है. इकोनॉमिकल थ्योरी भी है ये, अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो. जब ह्यूमन बींग्स क्रिएट हुए तब तो पावर जैसी कोई चीज नहीं थी ना. इट वाज नॉट दैट कि वन वाज बोर्न किंग. तो मेन आर इक्वल इन द सेंस दैट एनीवन कैन किल एनीवन एल्स. हर कोई किसी और को मार सकता है, हर किसी को गॉड ने इक्वल पैदा किया है, एंड सच मेन लिव इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेरर एंड नर्वसनेस.
आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा, हर कोई एक दूसरे के इक्वल है, हर कोई अपनी एक अलग दुनिया में जी रहा है। मान लीजिए कि वैसी ही दुनिया है, देयर आर 13 कॉन्टेस्टेंट्स और सबको सरवाइव करना है, तो ऑटोमेटिकली सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे कि आई हैव टू बी द विनर बाय द एंड। So since man's main goal in life is to protect his own life through his rational capacities, through his logics, he reasons that the best way to do is to establish a state with a power great enough to protect all who consent to live under it. तो सब चाहते हैं कि एक ऐसी कोई पावर हो जो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको खुद को प्रोटेक्ट ना करना पड़े। Thus, a state और कॉमनवेल्थ is established। तो इसी की वजह से एक स्टेट, कॉमनवेल्थ, एक गवर्नमेंट क्रिएट की जाती है with the sole purpose of protecting the lives of those who live under it, who live within it। इसी वजह से शायद गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हुई कि there will be a body of people who will make all the rules and who will try to protect the rights and lives of everyone under it। In part 2, he talks about the Commonwealth. Part 2 is keen to explain the citizen's duty to the state or Leviathan and its proper form and function। स्टेट की ड्यूटीज ज्यादा बताई गई हैं और उसके साथ ही साथ स्टेट के लिए प्रजा की, सब्जेक्ट्स की क्या ड्यूटीज है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज मोनार्की। यू मे अग्री, यू मे डिसएग्री, बट एग्जाम में आपको यही लिखना है जो हॉब्स के व्यू पॉइंट्स है। Right. So monarchy, since in any other form of government, the autonomous power is not strong enough to protect the subjects from outside invaders and from themselves. He says कि और किसी गवर्नमेंट में monarchy यानी कि किंग्स के अलावा किसी के पास पावर नहीं होती इतनी कि अपने सब्जेक्ट्स को आउटसाइड अटैकर से या खुद से ही सेव कर पाए। A subject's duty to sovereign is fully dedicated and acting otherwise is only hurting oneself since the Commonwealth is established for the self-preservation of its subject। आपको किसी जगह का किंग बना दिया जाए और बोला जाए कि यहाँ के सारे लोग अब आपकी जिम्मेदारी हैं, तो अपनी किंगशिप को, अपने मोनार्की स्टेटस को बचाए रखने के लिए यू विल ट्राई टू डू योर बेस्ट। ऑल्दो बहुत सारे एक्सेप्शनल तानाशाह किंग्स हुए हैं, बट अ जस्ट किंग विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट ऑल दी सब्जेक्ट्स। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी हो जाती है, बट क्योंकि अदरवाइज उसको उस लेवल से हटा दिया जाएगा। Of course, a subject has the option of leaving the Commonwealth if one finds it too oppressive. But to leave the Commonwealth is to re-enter the state of war। आपके आपकी प्रजा है, आपके अगेंस्ट हो जाती है, अगर बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई आर्मी क्रिएट करेंगे और आपके अगेंस्ट वॉर करेंगे। दिस इज हाउ द ह्यूमन बींग्स एंटर इनटू वॉर। This is the worst possible outcome since here there is no right or wrong, no justice, no injustice, and man is constantly defending himself। हर कोई अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो या तो एक किंग को, एक मोनार्क को बहुत अच्छे से शासन चलाना पड़ेगा अपना, नहीं तो उसको वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पार्ट 3 इज ऑफ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ। यहाँ पर हम रिलीजन को ले आए हैं थोड़ा सा। This part discusses the compliance or following to a sovereign authority consistent with compliance to a divine authority। हमें हमेशा से एक मिस्टिक पावर के बारे में बताया जाता है कि God exists, God is watching you, there is some CCTV। Hobbes says that there is no conflict between obeying civil and divine laws। कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवाइन लॉज को obey करने में, but that men are often led to in such a conflict through the false claim that God is existing in the world। किसी भी रिलीजियन के रिप्रेजेंटेटिव ने कभी गॉड को नहीं देखा, बट दे कीप ऑन मेकिंग द फॉल्स क्लेम गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड एग्जिस्ट्स विद इन दिस वर्ल्ड। According to Hobbes, the kingdom of God exists wholly outside the natural world। ये हॉब्स के व्यू पॉइंट्स है। अगेन आई से यू मे अग्री, यू मे डिसएग्री। हॉब्स के अकॉर्डिंग गॉड का किंगडम है लेकिन इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं यहाँ पर। डिस्पाइट द फ्रीक्वेंट क्लेम्स दैट अ ग्रुप हैज स्पेशल एक्सेस टू द डिवाइन। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे थ्रू आप गॉड तक पहुंच सकते हैं। आपने वो मूवी अगर देखी हो ओ माई गॉड, तो गॉड के कितने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि लोगों से पैसे लिया करते थे, उनकी तकलीफ दूर करवाने का अश्योरेंस दिया करते थे, लेकिन अल्टीमेटली होता कुछ नहीं था। God is totally mystical, according to Hobbes, I am saying then, and because no person can claim to have communication with or to be a demonstrative of or representative of God,
members of Commonwealth cannot possibly subscribe to a religious authority. अपने आप को एक अथॉरिटी बनाइए. ही इज सेइंग कि एक गवर्नमेंट है, अपने आप को एक अथॉरिटी की तरह रिप्रेजेंट करिए, बट नॉट एज अ religious authority, because religion may be there may be a religion, there may be beliefs of people, but no one should have the rights to claim that we are the representative of God. So he is saying the only power that exists for human beings should be the sovereign power, should be the power of king, not the power of God. There is no religious power obvious on earth that is greater. हो सकता है भगवान की पावर बहुत बड़ी हो, लेकिन किसी ने कभी नहीं देखा, तो भगवान का डर दिखाकर किसी पर राज करना not a just thing. In careful interpretation of scripture, Hobbes claims that there is no eternal soul that is punished or rewarded eternally in hell or heaven. होता भी है तो किसी ने नहीं देखा कि डेथ के बाद क्या आपको पनिशमेंट इटर्नली मिलती है, हेल और हेवन, एंड दैट देयर आर नो स्पिरिचुअल स्पिरिट्स इंटरैक्टिंग विद इन दिस वर्ल्ड. एटलीस्ट इस दुनिया में तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, किसी ने नहीं देखा. इन फैक्ट he concludes all that is necessary for proper worship of God is to obey civil laws. एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए, एक अच्छे सिविल पर्सन बनिए, सिविल लॉज को ऑबे करिए, तो आप अपने आप शायद उस मिस्टिक पावर को ऑबे कर रहे हैं, उसमें आपका फेथ है. पार्ट 4 में देखिए वो क्या बात करते हैं. पार्ट 4 इज ऑफ किंगडम डार्कनेस. So lastly, in part 4, Hobbes paints a blunt picture of what human life is like when not lived according to the principles he has set forth. अपने principles के according अगर आप life नहीं जिएंगे तो क्या होगा? He calls this social state of the kingdom of darkness. ये जो state है ना, ये kingdom of darkness रहेगी, which is not hell as conceived in religious doctrine. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ हेल होगी, but which is instead life of a continual manipulation by others. आपने खुद के कोई प्रिंसिपल, अपनी खुद की सिर्फ खुद की लाइफ सोचकर देखिए कि खुद के कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, खुद के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है. पर्सन ए सेज डू दिस यू डू दैट, पर्सन बी सेज डू दिस यू डू दैट, पर्सन सी सेज डू दिस यू डू दैट, मैनिपुलेटेड बाय अदर्स, राइट. आपको भी लगता है कि आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, खुद के लिए आप क्या कर रहे हैं. या कोई भी पर्सन जो भी ऐसे एक्ट करता है तो वी स्टार्ट फीलिंग अबाउट दैट पर्सन की कितना ममाज बेबी है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि खुद क्या करे, तो वो पर्सन कंप्लीटली डार्कनेस में. Hobbes argues that the main cause of spiritual darkness are the belief in the presence of kingdom of God on earth and the philosophical and historical doctrines that perpetuate this falsehood. अगर आप बस यही सोचते रहते हैं ना कि गॉड इस अर्थ पर है और जो कुछ करें गॉड ही करें, जो कुछ है सब ठीक है, जैसा चल रहा है सब ठीक है, अपने खुद से कुछ नहीं करना, खुद की कोई फिलोसफी, खुद के कोई व्यू पॉइंट्स नहीं बनाने, तो ऑब्वियसली दैट इज द किंगडम ऑफ डार्कनेस. और यहाँ पर हॉब एरिस्टोटल की फिलोसफी ऑफ एसेंशियलिज्म को भी अटैक करते हैं. तो किंगडम ऑफ डार्कनेस में वो कह रहे हैं कि सबको अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लाइफ खुद से क्रिएट करनी है और अपने आप को डार्कनेस में नहीं रखना है, अपने आप को नॉलेजेबल बनाकर रखना है, अपनी लाइफ को एक पर्पस देना है. लेकिन एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने कहा कि लाइफ हैज बीन क्रिएटेड ऑलरेडी. Aristotle claimed that essence, आपकी लाइफ की importance, was created prior to existence. For people, this means we are born with a predetermined purpose. सबकी लाइफ पहले ही लिखी जा चुकी है, सबकी लाइफ का पर्पस पहले ही लिखा जा चुका है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ. दिस वाज द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल. दिस आइडिया सीम्स टू इम्प्लाई, वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, दैट योर पर्पस इन लाइफ हैज बीन डिटरमिन्ड प्रायर टू योर बर्थ. तो आप बस जो चल रहा है वो चलता रहने दीजिए, जो हो रहा है वो होता रहने दीजिए. आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी लाइफ में लिखा होगा कि आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी तो वो बन जाएगी. दैट वाज द थियरी ऑफ एरिस्टोटल. सो हॉब्स ने एरिस्टोटल की फिलोसफी ऑफ एसेंशियलिज्म को भी अटैक किया है कि इफ वी विल फॉलो दैट काइंड ऑफ थ्योरी वी विल बी लिविंग इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस. So this is what he says in the end. Hobbes identifies three passions that drive people toward a state of peace. कौन कौन सी तीन चीजें हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बनती है या लोग चाहते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे एटलीस्ट. वन, फियर ऑफ डेथ. अगर
हम इंसान अपने आप में पावरफुल नहीं बनेंगे, कोई भी हमें मारकर चला जाएगा, उसकी वजह से हमें एक गवर्नमेंट चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करे अपने रूल से, अपने लॉ से। अ डिजायर फॉर अ सैटिस्फाइंग लाइफ, राइट टू लाइफ, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना। तो सबकी लाइफ इस तरीके की होनी चाहिए कि एटलीस्ट by the end of the day you can feel कि it was a satisfactory day. At least basic necessities, food, clothing, shelter, ये सब की पूरी होनी चाहिए. And they hope to be able to obtain such a life through one's work. सबके पास काम भी होना चाहिए कुछ ना कुछ. Fear of death, fear of life satisfactory elements and fear of being out of work. I think ये तीन चीजें हैं जो सबको persuade करती हैं कि कोई एक power हो जो सब कुछ handle करे. Because people have been given powers of reason. He says they have the tools to draw a particles of peace that allow people to create peaceful, stable society. हर कोई peaceful environment चाहते हैं except for some exceptional people on this earth. और इसीलिए सभी चाहते हैं कि अपने सर पे एक गवर्नमेंट हो जो ये सब कुछ हैंडल करे. अगर हर इंसान अपने हिसाब से चीजें हैंडल करने लग जाएगा, द सोसाइटी विल बी completely chaotic. Once again, let me remind you, by doing this playlist, you can cover the major topics of this subject. You will get the link in description. So that is it for this part of the video. You may join the classes to cover all the topics in detail. During the classes, you will get the PDFs, you will get the live interaction with the faculty, you may have group discussion with rest of the classmates. So you may join the classes, can click the link given in description to get connected to us for that purpose. Thanks a lot for watching at present, and please do not forget to share and subscribe the channel.